right now we are in. Okay, yeah. So as this is basic class, I will focus on NCERT, of course. Right now we are in chapter 11, if I'm not wrong. Just let me check once more. Um, we are in chapter 11 or 12 of NCERT. Okay. So now we'll start with algebra. Yeah, it's chapter 11 of NCERT, class 6. Yes. Okay. So शुरू से शुरू करते हैं. पहले algebra के एकदम beginning से start करते हैं with the word algebra. Okay. So this word was derived from a book. Okay. And this book was named as algebra. JE. Okay. वो L Al होगा Bala. Okay. And it was written long ago, around 825 AD. And it was written by an Arab mathematician. Of course, through the name only you can understand. It was written by an Arab mathematician. Okay. And his name was Muhammad ibn al-Khwarizmi. Okay. Muhammad ibn al-Khwarizmi, and he was from Baghdad. Great. And in India, this name, this algebra का जो नाम होता है, वो उसको जाना जाता है बीज गणित के नाम से. Okay. And it's again a branch of mathematics which is predated around 1500 BC to it's more than 3500 years old. This particular area of mathematics. Okay. And this was first, it's actually noted that it was probably first used by Egyptian people because they used to use a lot of symbols to denote various movements of people. Even they used to use this for calculations as well. So since algebra specifically works around variables and आपका different storing data होता है, जहाँ पे आपका different variables use होते हैं, वहाँ पे आप कोई भी value store कर सकते हैं basically. So we'll come to that. But before that, Indian mathematicians who were associated with their contribution to algebra were Aryabhatta. Okay. Brahmagupta. I was also said Mahavira was also around that period, and he used to use this thing as well, algebra as well, and Bhaskara too. Okay, so this is about it, and these names were specifically known from terms like Bij, as you can understand, because Bij Ganit वहां से पता चला हम लोगों को. फिर बीज वर्णा यहाँ से स्टार्ट हुआ. और यहाँ पे जब पहले हुआ करता था तब different words like black as if we translate it into Hindi, it is kala, right? So they used to use the first two words K and A to denote that particular terminology. Similar way में neela, which is blue color, that they used to use NE to NEE to denote that particular color. सो बेसिकली वो जो कलर का वैल्यू है वो स्टोर होता था ये पर्टिकुलर वेरिएबल में के ए में. फिर ये NEE में स्टोर होता था ब्लू का वैल्यू. ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट हुआ. तो नाउ लेट्स मूव टू द मेन पार्ट ऑफ इट. ओके, सो अगर किसी को कुछ एड ऑन करना है, ऑफ कोर्स एज आई से इन एवरी क्लास यू कैन डू इट. We are very much open to do it. Now, so
Coming to algebra, it is of course a branch of mathematics, and it represents problems or situations in form of expressions. मतलब एक expression के हिसाब से हम लोगों को पता चलता है, जैसे number system में odd numbers हम लोगों ने किया है, even numbers किया है, we have seen different forms, formats. फिर geometry हम लोगों ने देखा है, वो deal करता है shapes and volumes, areas, इस areas पे काम करते हैं. Mensuration we have seen a lot of areas, पर ये स्पेसिफिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे काम होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेशंस पे काम होता है. एंड इट इन्वॉल्व्स विद वेरिएबल्स सच एज, बहुत ही कॉमन वेरिएबल्स जो हम लोग यूज करते हैं, those are x y z, and you can also use any for that matter, a b c d, कुछ भी यूज कर सकते हो, पर जनरली x y z के टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को देखने को मिलेगा. एंड ऑपरेशंस जो होते हैं, मतलब ये एक्सप्रेशंस में, एक्सप्रेशंस का हम लोग देखेंगे कैसा होता है, पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एज वेल एज डिविजन. सो बेसिक ही यूज करते हैं, ठीक है. तो ये और इसको मिला के, और ऑफ कोर्स देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड कांस्टेंट, ये तीन सब्सटेंस को मिला के हम लोगों को बनता है एक एक्सप्रेशन, ठीक है. और एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, this something like this, okay. So you can see there is an operator who is operating the entire equation, और ये पूरे को हम लोग एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोलते हैं, and it is a linear one, ठीक है. और ये आपका एक कांस्टेंट हो गया, और ये तो आपका वैल्यू है, आपको समझ आ रहा है. 4 में तो कुछ और स्टोर नहीं कर सकते, पर यहाँ पे जो x है वहां पे आप कुछ भी डाल सकते हो, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. वैल्यू जो हो सकता है, इट कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट मूव्स. एंड सो बेसिक जो रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर हम लोग जाए, तो टू अंडरस्टैंड अलजेब्रा एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट सॉल्व्स इक्वेशन टू फाइंड द पर्टिकुलर राइट आंसर. तो अगर x का वैल्यू जानना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट आंसर जानना पड़ेगा, तो इट्स नॉट दैट वी आर अज्यूमिंग कि x का क्या वैल्यू हो सकता है. वी कैन आल्सो अज्यूम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि क्या हो सकता है, x 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा. वी कैन अज्यूम एज सच, बट अलजेब्रिक इक्वेशन एक पूरा परफेक्ट आंसर, एक एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, ओके. And it is useful in other topics of mathematics as well. So in CSAT you won't see algebra का particularly ऐसे quadratic equation, जैसे बचपन में होता था कि quadratic equation या फिर ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ आपका यूज करने के लिए बोला जाता था, राइट. सो बचपन में काफी टाइम हम लोग को quadratic equations and all we used to kind of solve and all of those things, ठीक है. But The thing is that यहाँ पे जैसे CSAT वगैरह में जो भी मतलब कैट लेवल के एग्जाम्स में या फिर वहां पे डायरेक्ट अलजेब्रा ओरिएंटेड सम्स हम लोग को नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे आज क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना शॉर्ट क्लास हो सके, क्रिस्प कॉन्सेप्ट बस मतलब बेसिक समझ ले अलजेब्रा के, ठीक है. और हाँ, तो बेसिकली ये x का जो अभी ये वैल्यू होगा, ये ऑफ कोर्स 0 नहीं हो सकता है. यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इटसेल्फ, ओके. तो नाउ ये जो इक्वेशन था, तो इसको थोड़ा बाइफरकेट करके देख लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है. क्या था, 8 था ना, सॉरी. तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ऑफ कोर्स. आई एम ओके, आई विल राइट द फुल थिंग ओनली. वेरिएबल, इसको तो ऑफ कोर्स ऑपरेटर बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन को ऑपरेट करेगा. मतलब पूरा इक्वेशन को यही है जो आप एक डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक एडिशन वाला है या सब्ट्रैक्शन वाला है, ये कौन सा मतलब फॉर्मेट क्या पकड़ेगा अपना, ठीक है. ये पहले वाला जो है, ये इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोला जाता है इसको, ठीक है. एंड दिस टू, ये दो आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट्स, ठीक है. आई होप अभी तक सबको क्लियर है. Now let's move on to जो complexity of algebra होता है, it's simply used by numerous like kind of algebraic equations and all, algebraic expressions or equations and all. So there are various branches like और classifications है. तो algebra के पहले classification में आपके आ जाता है प्री algebra. मतलब प्री algebra बोला जाता है, या फिर और एक terminology था, I am
फॉरगेटिंग सम सॉर्ट, बताती हूँ मैं. प्री अलजेब्रा बोला जाता है और इसको और एक टर्मिनोलॉजी था कुछ, अलजेब्रा. और आपका आई थिंक इट्स ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज एलिमेंट्री एज वेल. तो एलिमेंट्री का आप एक डिफरेंट वो भी बता सकते हो, मतलब एलिमेंट्री का एक डिफरेंट डेफिनेशन भी होता है, एलिमेंट्री अलजेब्रा. सो नाउ सेकेंड वन इज आपका okay. So second one is your abstract one. Abstract. Abstract algebra. Next is your universal one. तो एक एक करके देखते हैं और इनका इनका बहुत ही क्रिस्प वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब मतलब बाइफिकेशन तो कभी पूछेगा नहीं. तो प्री अलजेब्रा इज बेसिकली बहुत ही प्री, यू कैन अंडरस्टैंड इट्स प्रीवियस द कॉम्प्लेक्स, मतलब एडवांस लेवल में जाने के एकदम बिगिनिंग वाले, मतलब जैसे एबीसीडी पहले पढ़ना स्टार्ट किया फिर उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट किया, तो इट्स काइंड ऑफ एबीसीडीज ऑफ दीज थिंग्स. ओके, so the basic way of representing the known values as variables, and this helps to create a mathematical expression. Okay, तो ये क्या करते हैं कि रियल लाइफ अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पास, एक रियल लाइफ अगर कोई भी एक इक्वेशन है, विल सी एग्जांपल्स एज वेल. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब ये हिसाब से मतलब आपका एक थियोरेटिकली वी विल अंडरस्टैंड एंड देन एक बार एग्जांपल भी देखेंगे. तो रियल लाइफ जो भी एग्जांपल्स, मतलब रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इनटू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. दिस इज बेसिकली आपका प्री हो गया. और आपका ये फॉर्मेशन होता है ऑफकोर्स एक मैथमेटिक एक्सप्रेशन में फॉर्म होगा. एंड दिस एंटायर प्रॉब्लम, दिस कन्वर्जन दिस फॉल्स अंडर दिस प्री वाला. ठीक है, नेक्स्ट आपका एलिमेंट्री फॉर्मेट आ जाता है. एलिमेंट्री फॉर्मेट इज इट डील्स विद सॉल्विंग द अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, एक वायबल आंसर निकालने के लिए. तो एक वायबल आंसर निकालने के लिए we will solve the entire thing. Okay, we'll solve. Elementary में क्या होता है, solving होता है, solving the expression. ठीक है, इतना लिखने से चलेगा. So now linear quadratic equations, polynomial equations, ये तो there most of us know these things, but linear equations में क्या होता है, this is the basic format or ऐसा होता है something like this. This is C. जैसे आप लोगों ने देखा वो 2x plus 4 equals to 8 वाला में, तो वो 2 is basically यहाँ पे आप अगर डाल दीजिए या फिर 4 यहाँ पे डाल देंगे अगर, और 8 यहाँ पे अगर डाल देंगे हम लोग, तो this is how it goes and this x is of course the variable. So this is a linear format. ठीक है, किसी को अगर linear का मतलब linear इक्वेशन का मतलब पता है, यू कैन राइट इट इन वन वर्ड या फिर एक सेंटेंस आप अगर लिख पाते हो, आई विल गिव यू अ मिनट और सो. और जैसे स्ट्रेट लाइन का होता है ना, that is also sometimes that is also kind of considered as a linear format. This is C. Okay, I'll say linear में क्या होता है, linear is of course it's all about a straight line. ये सारे values अगर आप एक ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. एंड जनरली क्या होता है, it deals with one variable in an equation and it has only one variable present in the entire equation and all, and so two real numbers will be there of course and one unknown variable will be there, so the entire solution will basically be one only. मतलब ये सब में entire solution आपका x का ही मिलेगा. ठीक है, that's about it. इतना मतलब कुछ हैवी चीज है नहीं यहाँ पे. ठीक है, ये हो गया. अभी फिर हाँ, और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं बस आपको परिचित करवा देती हूँ कैसे दिखता है इक्वेशन. दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. सो ए स्क्वायर प्लस bx
plus c equals to 0. So this looks like this, and यहाँ पे काफी टाइम हम लोगों ने ये शायद क्या मतलब हम लोगों ने ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग के टाइम में देखा था. ओके, नेक्स्ट आपका और एक आ जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो पॉलिनोमियल इज a kind of expanded version of this quadratic one. You can call it something like that. मतलब ये बोल नहीं सकते पर कंसिडर कर सकते हैं. पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल मतलब आपको समझ ही आ रहा है, पॉली मीन्स मेनी. ओके, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन. ओके, लेट्स सी वेयर द मेनी कम्स इनटू प्लेस. मतलब यहाँ जो मेनी है इक्वेशन के नाम में ही, तो ये आपका x के पावर के पे आ जाता है. ठीक है, this one. These kind of equations are considered as polynomial equation, जहाँ पे एक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक, जैसे हम लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी सुना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइक ये जो प्रोग्रेशंस है और ये जो वैल्यू है, this is basically what its term मतलब what it's kind of trying to explain through the word called polynomial. ठीक है. Now coming to the abstract format. Abstract क्या है? Abstract algebra. यहाँ पे आपका of course the name considers, so it uses abstract concepts like groups. ठीक है, rings, vectors and etc. मतलब और बहुत कुछ हो सकता है. rings basically क्या होता है, एक एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे, पर आई एम जस्ट सेइंग कि एक सिंपल लेवल होता है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल लेवल ऑफ राइटिंग समथिंग, इतना डीप नहीं जाते, राइटिंग समथिंग थ्रू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. इफ यू रिमेम्बर द हम लोग जब पढ़ रहे थे बहुत पहले, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कम्यूटेटिव लॉज एंड ऑल. तो वहां पे हम लोगों ने देखा था एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, राइट. तो वहां पे जैसे एडिशंस के वी हैव सीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे भी वही एरियाज पे काम होता है. ठीक है, तो एडिशन और आपका multiplication में multiplication properties are togetherly kind of merged into this. So there is group and ring theories. These are the most two important like kind of abstract algebra. ठीक है, और these are specifically used in used to find applications such as astronomy में बहुत use होता है, space में. ठीक है, science, physics, मतलब these मतलब मैथमेटिक, डायरेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, बस टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से आई एम जस्ट सेइंग इट्स यूज्ड मोस्टली इन एस्ट्रोनॉमी. देन योर यूजेस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड और बहुत कुछ था. फिजिक्स, साइंस, स्पेसिफिकली एरियाज लाइक कंप्यूटर साइंस में यूज होता है काफी टाइम, सीएस में यूज होता है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिवर्सल वन. And universal में सब like all other mathematical forms that are included, like trigonometry is there, calculus, coordinate geometry, ठीक है, trigo is there. Then आपका calculus आ जाता है यहाँ पे, फिर आपका coordinate geometry आ जाता है. And these kind of like these are all concepts which are imbibed in this universal aspects. So across this universal like algebra studies, there are mathematical like expressions which might not fall under the basic जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, like जो quadratic, linear format और ये सब में शायद basic model में fit in ना करे, पर ये आपका यूनिवर्सल अलजेब्रा में आता है. ठीक है, that's about it. And the real life problems can be again classified in this particular branch as well, जहाँ पे आपका mathematics and it will also solve some sort like some like abstract properties as well यहाँ पे. ठीक है, so now moving to few examples so that it's understandable for all. आई होप वेरिएबल सबको समझ आ गया. मतलब वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है अपने में. ठीक है,
Okay, so there's this sum. पहले वाले पे ही जाते हैं, ठीक है. So oranges can be transferred from a large box into a smaller box. Okay, there's this orange that can be transferred from a large box LB to a small box SB. ठीक है. So now when this large box is emptied, ये पूरा empty कर देना है. ठीक है. And these oranges can be fit into दो ही small box आपके पास दिया गया है. ठीक है. So now these two small box को पूरा fill करना है. You have to fill it totally. And but एक condition है जहाँ पे बोला गया है कि 10 oranges को आपको बाहर ही रखना है. 10 oranges फिर से आपके घर के खाने के लिए आपको 10 oranges you have to keep it outside. And बाकी जो oranges है उसको आपको box के अंदर डाल देना है. So if the number of oranges in the box are taken as X, so just say like what would be the number of oranges in this particular large box. मतलब कितना पूरा total large box में था. अगर ये small box में दो small box में डालने वाले apple के like number is X. ठीक है. So again I'm just giving you a hint कि ये एक equation format में आएगा. ठीक है. If anyone is present in the class, you can mention it, or else of course मैं ही बता दूंगी. I'll just give you a minute. You just have to find out number of oranges in a large box. Like existing जो box में जो था वो कितना था एक estimate बताना है. Equation के format में आएगा. Okay, I'll answer. ये आपका होगा. Of course 10 अगर आप बाहर ही रख रहे हो तो 10 को बाहर रख दो. और 2 boxes थे तो 2x. 2 into x because x is the number of oranges that will be inside this 2 boxes, right? So this is basically it. बहुत ही basic था. NCERT से है तो you can understand. Okay, I hope it's ठीक है. कोई question है अभी तक किसी को? Okay, no question. Okay, so now let's move to the commutative of addition or addition of two numbers जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, and commutative property of multiplications, because that's what we'll be using in this particular thing as well. So it's the same. Example से ही समझ लेते हैं, ठीक है. जैसे 4 plus 3 is 7. तो if you इसको अगर आप अदल बदल भी कर देते हो 3 plus 4 करते हो, so that also will give you 7, right? So this is the commutative property of addition. Addition का ये है. And next आपका multiplication का भी similar format होता है, which is this is 12. तो अब अगर आपको ये आप swap कर दोगे इन दोनों का places, तो it will again be the same. So this is again the commutative property only, but of multiplication. Okay.
So it's both of these are properties of numbers. Properties of numbers के टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? So we read this thing, if you remember, a into b is which is similar to this as well. Correct? Similar way में यहाँ पे भी this is what we read, commutative property में this is similar to this. And distributive property एक पढ़ा था हम लोगों ने, वहां पे of course it talks about distributive, तो it talks about distribution of stuffs, right? So distributive property में हम लोगों ने देखा था ये distributive DIVE, okay? Distributive properties में और distributivity of numbers में, any way you can write it. So यहाँ पे अगर there's this for say 7 into 38 है, and you can also write it as 7 into 30 plus 8, correct? And you can also write it as this thing, 7 into 30 plus 7 into 8. So you are just distributing this 7 amongst these two numbers. 7 क्योंकि multiplied था ये पूरा नंबर के साथ, तो इसका कॉम्बिनेशन जितना भी होगा, इसका जितना भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो बना लो, 20 plus 18, जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हो फॉर दैट मैटर, वो कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है? And distributive property of multiplication over this, and this is called as distributive property of multiplication over addition basically. Okay, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, distribute क्यों इसको बोला जाता है over addition of a number, because of course you're distributing multiplication जो number है, मतलब जो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आप addition of numbers पे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, okay? If that makes sense, if I'm able to, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि distributive property of multiplication over the addition of a particular number, of any number for that matter. And this is what we saw previously as well. A into B यहाँ पे होगा, and then A into C. So this is how it works. Now let's see some numericals. Okay. For say एक ऐसा न्यूमेरिकल कुछ था एनसीईआरटी में, okay, got it. So yeah, like a same number but in different way, yeah, correct. Yeah, you can understand it by that as well. You're just distributing it in a different way, same number ही रह रहा है, आपका आंसर भी सेम फॉर्मेट में आएगा, but it helps you to arrange the entire equation. तो आप जितना डीप, मतलब अगर आपको करना है बहुत लाइक अलजेब्रा के दूसरे सम्स, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कितने ब्यूटिफुली यू कैन यूज इट थ्रू आउट एनी इक्वेशन. तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इतना इजीली यू कैन काइंड ऑफ यूज इट, आप ट्विक कर सकते हो बेसिकली ये प्रॉपर्टी को इक्वेशन के मिडिल में, ठीक है? या मिडिल टर्म ब्रेकिंग एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो कि बहुत हम लोग यूज करते थे बचपन में, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी काइंड ऑफ यूज्ड. ओके, सो लेट्स सी दिस सम कि फॉर एग्जांपल दिस टेक Sarita present age to be y years. Okay, y is the variable. So now what you have to find out is what was her age 5 years ago. Oh sorry, 5 years. Okay, 5 years ago भी निकाल सकते हो, 5 years from now.
अभी से 5 साल बाद उनका क्या एज होगा. Second, you have to find out is her age 3 years back. Her age 3 years back and 5 years back भी आप निकाल लीजिए. ठीक है. देन आपको निकालना पड़ेगा कि सरिता का एस लिख रही हूँ. ठीक है. हर एज. ठीक है. सो व्हाट्स हर लाइक बेसिकली ग्रैंडफादर का एज कितना है ये निकालना है. ग्रेट. एंड देन फोर्थ इज grandmother is 2 years younger than grandfather. ठीक है. तो व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज. ठीक है. ये 4 कर लीजिए. फिर लास्ट वाला मैं बताती हूँ आपको. बहुत इजी है तो आई डोंट थिंक इट वुड टेक मच टाइम. I think it can be done within a minute and a half. Whoever wants to try can do it. Okay, someone has answered or what? Shruti, okay, 5 plus. Oh, okay, great. Okay, so Shruti has answered. And the fifth question is, आपका क्या था fifth question? Sarita's father's age, I think it was there. Sarita's father's age was there. First say, father's age is 5 years more than 3 times of Sarita's age. तो फादर का एज कितना है वो आपको निकालना है. फादर का एज कितना है. फिफ्थ वाला. ठीक है. ओके. ओनली श्रुति हैज आंसर. ग्रेट. ओके. सो लेट्स सी. सो पहला वाला क्या था. हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. मतलब 5 साल बाद इसका क्या एज होगा. अभी वाई है. ठीक है. चेंज कर लेते थोड़ा कलर. ओके. सो दिस वाज द फर्स्ट सम. तो अगर अभी y है, गिवन है y, तो पहले वाला तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. 5 साल बाद तो एडिशन ही होगा. कमेगा तो नहीं, मतलब कम तो नहीं होगा किसी का एज. तो नेक्स्ट सम आपका था 3 years बैक और 5 साल, मतलब अभी से लेके 3 साल पहले क्या होगा और 5 साल पहले क्या होगा. 3 साल पहले क्या होगा. y-3 और 5 साल पहले y-5. ठीक है. years. नाउ नेक्स्ट इज आपका ग्रैंडफादर के एज था, which is what it was said that 6 times of a time. मतलब 6 times क्या होता है. आपके पास अगर एक टॉफी है and it said that कोई एक मैजिक से वो टॉफी 6 times हो सकता है, मतलब multiplied by 6, right? So age of grandfather would be 6 into age of Sarita, so that would be 6y. And next is so grandmother's age was said as 2 years younger than that of grandfather. तो grandmother का age निकालना था. तो अगर age of grandmother is age of grandfather's -2, because 2 कम है, 2 साल कम है उनका, तो it would be 6y.
क्योंकि इनका तो 6y निकला था -2. सो दिस इज अबाउट इट, हो गया बहुत इजी. एंड देन यही शायद 4 था ना, हाँ ये 4 था. 3 तो उधर ही कर दिया था. एंड दिस इज 5 वाला क्या था? Father says 5 years more than 3 times of अच्छा okay. तो father's age was 5 years more than 3 times of Sarita's age. तो age father, ठीक है. ये आपका बताया गया है कि 5 साल है सरिता. कितना? सरिता का 3 गुना से 5 साल ज्यादा है, ठीक है. तो सरिता का एज था y, उसको आप 3 टाइम्स कर दो, उसके साथ 5 ऐड कर दो. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 3y. सो दिस वाज द एज ऑफ हर फादर. वेरी इजी, कुछ था ही नहीं इसमें तो, ठीक है. अभी नेक्स्ट और एक देखते हैं रेक्टेंगुलर हॉल का, क्योंकि रिसेंटली वी वर डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ शेप्स एंड दिस थिंग्स. तो नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ rectangular hall is given as 4 meter, okay, less than 3 times of breadth of the hall, ठीक है. This is the length. So now what is the length if the breadth is b meters? तो length कितना होगा आपको निकालना है अगर breadth दिया गया है is b meters, ठीक है. This is the ये unit. I think only Shruti is trying. So Shruti, if you want to try, you can try. I'll give you a minute. Then we can move to the next. Shruti has answered. Okay. 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 So yes, since Shruti has answered, I'll just explain. Her answer is correct only. So एक rectangle ऐसे दिखता था कुछ, right? तो यहाँ पे अगर B है breadth and ये आपको निकालना था. So now it was given that breadth of a hall was b meters. तो आपको बस निकालना है कि लेंथ कितना होगा. तो लेंथ यहाँ पे दिया गया है कि 3 times, like 4 less than 3 times the breadth. तो 3 times the breadth पहले क्या होगा 3b, करेक्ट. एंड 4 लेस मतलब -4. तो यही है आपका लेंथ, कुछ भी है नहीं, ठीक है. आई होप इट्स समझ में आ गया सबको. नेक्स्ट आपका और एक है, ये भी कर लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है. बॉक्स का मतलब आपको समझ आ गया कि एक क्यूब सॉर्ट ऑफ लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका हाइट है 8 सेंटीमीटर हाइट, ओके. सो इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स हाइट का, ठीक है. हाइट का 5 टाइम्स है एंड ब्रेथ is 10 centimeter less than the length. लेंथ से 10 सेंटीमीटर लेस है आपका ब्रेथ, और लेंथ का पहले आपको निकालना पड़ेगा ऑफ कोर्स. सो इट्स 5 टाइम्स द हाइट, ठीक है. सो नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट express the length and the breadth of the box. So length and breadth आपको बस निकालना है, L and B. Again I'll give a minute.
बॉक्स बना देते हैं ताकि सबको समझ आ जाए किस चीज का बारे में बात हो रहा है। ऐसा एक बॉक्स है, इसका हाइट बताया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक श्रुति ने आंसर कर दिया, ओके। 5h, ओके, द लेंथ 5h minus 10, ग्रेट, ओके, करेक्ट। तो लेंथ आपको तो बताया गया था 5 टाइम्स ऑफ हाइट, तो हाइट बताया गया है h सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी 5 into h centimeter, which is what Shruti also answered. And then the breadth is said as 10 centimeter less than that of the length. तो लेंथ आपका निकल गया 5h, so minus of course 10 centimeter तो कम है, right? 10 is the constant here, so this is about it. Yeah, correct. Okay. So now let's move to the next part of it, जहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि जहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन देंगे आपको, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आई विल गिव यू, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, you just have to say कि whether that satisfies or not, satisfies the equation basically or not, yes and no में आंसर देना है बस। तो this is, जल्दी जल्दी बस लिखते लिखते ही आप बता देना। This is the equation, 10y is equals to 80 and the value is, y का वैल्यू आपका 10 दिया गया है, नेक्स्ट इज 10y equals to 80, वैल्यू आपका दिया गया है 5, नेक्स्ट इज 4l equals to 20, l का वैल्यू आपका दिया गया है 80, 4l equals to 20, l का वैल्यू आपका दिया गया है 5, b plus 5 is to 9, b is equals to 5, b plus b plus 6 is equals to 9, b is equals to 1. Just write yes or no. No, no, okay, yes, no, okay. Okay. So basically यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब इसको रिप्लेस करना है आपको वैल्यू से, और you have to just see कि whether the answer is coming or not. Of course it's not coming, so no. Again this 5 into 10 is 50, so no. Again this 80 is there, and there's 4, so of course, so 4 it won't be, right? So now there's 5 and there's 4 into 5 is 20, yes. Again this b is given as 5, so 5 plus 5 is 10, no, answer is not coming as 9, correct. And then here's 6 and there's this b and answer is 9, so it's given 1, so 1 plus 6 is 7, again no, correct, 1 and 5 is correct, okay, yeah, right. So these were like very basic things that were discussed in आपका यहाँ पे algebra के chapter में, NCERT में, ठीक है। If anyone has anything else to add on, you can definitely do that. Okay.
So basically यहाँ पे आपका variables क्या था, we got to know. So variables allow us to express any sort of relation in any practical situation. Next, variable takes so variables का जो भी properties है वो you can of course understand. So variable takes different values, and the value is not fixed. Value not fixed takes different values. Then आपका length of the square, or like it can be anything as such, like जहाँ पे हम लोगों ने rectangle देखा, square, you can also consider square, triangle, anything for that matter. So any of that value will not be defined as such. You can store any sort of value in that particular variable. Next is the number of angles in a triangle has a fixed value. Of course, that's 3, and that is not a variable. Okay. Similar way में square का sides भी आपका fixed है, that is 4. You cannot say कि number of squares, like sides of a square is equals to something. मतलब वो 4 ही होगा, वो तो predefined है, ठीक है. ट्राइंगल का जैसा है, ट्राइंगल का भी आपका 4 ही है, वो प्रीडिफाइंड है, ठीक है. वैसी चीजों को हम लोग वेरिएबल से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. So now any letter for that matter can be used as a variable. कोई भी letter L, M, O, N, O, P, A, B, C, D, Z, कुछ भी, ठीक है. So next आपका variables are of course numbers, but again these numbers can be stored in any format, and these numbers can be operated through the basic operations जो हम लोगों को पता है. कुछ ऐसी एडवांस लेवल का कुछ करना नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है. जैसे आपका p/3, दिस इज डिविजन. देन आपका 3l-5, दिस इज पहले मल्टीप्लीकेशन फिर माइनस, ठीक है, सब्सट्रैक्शन. Similar way में x minus 3, this is again subtraction. X plus 3, this is addition. So this is how it goes. So next, एक equation का RHS और LHS, so ये term सबको पता है तो I did not say it. RHS and LHS ये दोनों सेम होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट पे देखा. ये LHS था, ये RHS था. RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड. तो ये दोनों आपका इक्वल होना चाहिए. ऑफ कोर्स ये तो मतलब इक्वल साइन होना चाहिए, दोनों का मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है. सो नाउ सो या इट शुड बी इक्वल. एंड अगर LHS का वैल्यू डेफिनेट है, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू दिया गया है, सो टेक्निकली मतलब वो रेप्लिकेट कर ही देगा RHS का वैल्यू भी, ठीक है. सो एक डेफिनेट वैल्यू भी हम लोगों को मिल जाता है इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएबल इन ईदर साइड्स, तो हम लोगों को कैसे भी करके हम लोगों को मिल जाएगा वैसे, ठीक है. सो नाउ इतना ही था आज तो, ठीक है. If anyone has anything else to add on, you can do it. Or else, let me just check if I'm missing out on anything else. I don't think so. बाकी आगे का आपका एक्सपोनेंट, सिंप्लीफाइंग, पॉलिनोमियल्स, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट बाइफर्केशंस में आ जाते हैं. So we'll see it in the next class or so, but it's not in NCERT class 6 book. So these things we can see in the advanced portion. ये कर लेंगे हम लोग next class में, एक एक portion उठा के, like exponents एक बार कर लेंगे पूरा, फिर simplifying, फिर polynomials, quadratic equations सबको पता ही है, तो पहले quadratic भी कर सकते हैं for that matter. So today's class is up because, okay. If anyone has any doubt, you can contact me. I don't think any